Yeah, Jairaj, very good morning. So now we have a session of SSB here now, and I'm going to the stories which has been sent to me. कुछ एक बच्चों ने मुझे अभी भेजी हैं, and we will take on these two stories today, and we will discuss the stories. Namrata, very good morning. नम्रता, मेरी 10 बजे से बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, तो 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है. सो बट विल ट्राई कि हम 11:30 पे शार्प क्लास शुरू कर दें. और thank you so much for joining the class, and I'll wait for 1 more minute, and whosoever are serious candidates for SSB, please immediately class join कीजिए, because मैं क्लास शुरू होते ही I will start my class, and मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, because मेरे पास डेली ये half an hour है आप लोगों को देने के लिए, right? So and please promote this class, because this class will be very useful. थोड़ा सा AC का टेम्परेचर कम कर दो, so that थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा बढ़ गया. So this class will be useful for all those students who are very serious for SSB, right? So kindly share this class, kindly promote this class, and so that सभी लोगों को right education मिले, right चीज़ें मिले, ठीक है? So okay, fine. So let's I'm going to read out the first story of the day, right? और यदि कोई किसी की स्टोरी मिस हो जाती है तो मुझे ज़रा व्हाट्सएप पे दोबारा भेज सकते हैं, हालांकि मिस होगी नहीं. तो फर्स्ट स्टोरी ऑफ द डे आप लोगों ने लिखा है, सब लोग अच्छा लिख रहे हैं, राइट? और मुझे उम्मीद है कि आने वाले और इस हफ्ते में हम लोग चीज़ों को और अच्छे से लिखना शुरू करेंगे. फॉर माई ईज आई एम गोइंग टू अ साइड. आई होप मैं स्क्रीन में विजिबल होऊंगा थोड़ा सा. सो देयर इज अ सीन ऑफ hometown factory. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नॉट डिस्क्राइब द सीन, ठीक है? स्टोरी में ना सीन को डिस्क्राइब करने की गलती मत करो, ठीक है? और एक पॉजिटिव अप्रोच जरूर होनी चाहिए इसमें, एक पॉजिटिव अप्रोच जरूर होनी चाहिए. लेकिन हम एक स्टोरी को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है. हम आज 5-6 स्टोरीज पढ़ेंगे इसके बारे में, और फिर मैं आपको लास्ट में एक खुद की स्टोरी बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूं, एंड देन वी कैन कनेक्ट विद दैट. So there is a scene of hometown factory. Its owner's name is Raghav. He is 45 years old. ठीक है? In this factory, men and small children both are working. There is breaking law to do work children is child labor. ठीक है, अभी आप ग्रामर पे मत जाइएगा, सिर्फ भावना समझिए. मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं, मैं ग्रामेटिकली सही करने बैठ जाऊंगा तो वक्त लग जाएगा. One day, his son comes in the factory. Son's name is Ratan. He is 16-year-old. He says to his father that why are small children working? Raghav is of strict nature. He scolded Ratan. Then the Ratan says that in the school the teacher says to do work by children is crime of child labor. The police can arrest due to it. Hearing the talk of Ratan, Raghav was shocked. One more story. In a small village, there was a boy named Arjun. He is a student. Arjun had many friends. All one studied in the same school. One day they decided to visit village. They were shocked to see the place where they lived. It was very filthy. There was stagnant water on the roads where they saw mosquitoes breeding. The next day they decided to clean the place, so all are gathered in the street, started cleaning the place. Okay? So these are the two stories which I have received. So Namrata has sent me 2 stories. So second story we will take on with the second picture, right? And one more story which I received, I have read it out. अब हम दोनों स्टोरीज को जरा सा इसका ऑपरेशन करते हैं, और मुझे एक स्टोरीज और भेजी है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ. 1 सेकेंड, लेट्स नॉट लीव बिहाइंड दैट स्टोरी. या बहुत बड़ी स्टोरी लिखी है. Ramesh, a 23-year army soldier posted in Sikkim. His family is living in
JBL Society of Jaipur. He got a leave of 20 days and came home. He saw that people were not aware about how to collect garbage and plastic polythenes. They threw plastic polythene and garbage anywhere in empty pots, side of the roads in society. So he decided to make aware the people about cleanliness. On next day in the morning, he went in the ground where school students and college students were playing. He called them and told them how we can take pollution problem as a mission. He made 3 teams. One would go to make people aware about how pollution was killing one nature by making poster on it, wall of the gardens and empty pots. Team second would plant the plants in the society. Team third under Ramesh would clean the garbage and call the municipality truck and load the garbage. At the end of the day, they arrange a rally program also. Next day, the result were coming. People collect the garbage in the dustbin, gave it to the vehicle of municipality. The campaign was going for 3 days. Not only this society, but also every street and society of the thing. Nature lover initiative, taking person, planning and organizing ability to influence the people. So here 3 स्टोरी हमने पढ़ी हैं जो मेरे पास आई थी. अब देखिए यहाँ पर कि केवल एक ही स्टूडेंट ने, जो मैंने कल कहा था कि जो ट्रेड्स निकल के आ रहे हैं वो भी हमको समझने और हमको समझाने हैं, और केवल एक ही स्टूडेंट ने भेजा. मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई का कैडेट्स ब्लॉक. यहाँ पर आगे तो आप भी इस कैडेट की तरह, इस जनरल कैडेट की तरह जुड़िए आप मेरे साथ. यहाँ पर आकर रगड़ा खाइए और ट्रेनिंग लीजिए. हर नौजवान का सपना होता है कि वो यहाँ पर आए, रहे और ट्रेनिंग ले. परमेश्वरन ड्रिल स्क्वायर से जब हम बाहर निकलते हैं अंतिम लेकर, तब हम एक कमीशन ऑफिसर बनते हैं. When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. This is the spirit of armed forces. And if you want to join the armed forces, मैं कैप्टन अतुल आपको तैयारी कराऊंगा एनडी और सीडीएस की, so that आप इंडिया की प्रेस्टिजियस एकेडमीज के अंदर आकर ट्रेंड हो और बने इस देश की सेना का हिस्सा. अब देखिए यहाँ पर एक जो पिक्चर के अंदर अगेन हम लोग जो पहली स्टोरी थी रतन वाली, उसके अंदर रतन ने हीरो किसको बनाया मुझे समझ में नहीं आया. रतन ने हीरो ये पिताजी को बनाया. पिताजी तो दिख रहे हैं यहां पर. अगर रतन इस व्यक्ति को लेता है, ये हमारा एक पिक्चर का सेंट्रल फिगर है. अगर मैं इस फोटोग्राफ को देखता हूं तो मुझे यही बंदा मेन नजर आ रहा है, तो मेरा जो हीरो है वो तो यही होना चाहिए. रतन वाली स्टोरी के अंदर, जिसके अंदर रतन जो फैक्ट्री का ओनर है, वहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मसला. वहां हीरो कौन बन गया? वो जो बच्चा था, जो उसका जो छोटा सा, वो वाकई बन गया हीरो. बाकी जो दूसरी स्टोरी थी जो सैनिटेशन और हाइजीन वाली थी, उसमें जो ये स्टोरी मैंने अभी पढ़ी थी, बाद में नम्रता ने भी सेम चीज लिया था. और ये जो स्टोरी है ये जयराज की स्टोरी थी. जयराज ने, लेकिन इतना लंबा टाइम नहीं मिलेगा जयराज लिखने के लिए. आप लोग जो भी स्टोरी लिखते हैं उसको प्लीज वॉच के अनुसार टाइम्ड लिखिए. 4 मिनट लगाइए केवल, 100 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अब देखिए यहां पर एजेंडा कई सारे हो सकते हैं. ये एक सैनिटेशन ड्राइव हो सकती है. एक सैनिटेशन ड्राइव हो सकती है. जनरली आमतौर पे बहुत सारे स्टूडेंट इसको एक सैनिटेशन ड्राइव के अंदर ही लेते हैं. ठीक है, एक और मैं आपको स्टोरी देता हूं. ठीक है, नम्रता ने लिखा था कि बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, वो गांव आए, उन्होंने गांव की दुर्दशा देखी. जयराज ने लिखा कि एक फौजी है जो कि जब छुट्टी पे आया तो उसने ये दुर्दशा देखी. राइट, इस प्रकार से आपने ये चीजें ट्रीट करी और आपने एक सैनिटेशन ड्राइव बनाया. तो जो आपका मुद्दा था वो था सैनिटेशन ड्राइव, जो आपका प्लॉट था वो सैनिटेशन ड्राइव था. ठीक है, हमने जो स्टैब्लिश नहीं किया, हमने क्या नहीं किया, हमने इस पिक्चर के अंदर जो स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रॉब्लम या फिर नीड, जरूरत किस चीज की है,
इसको हमें बड़ा स्ट्रांगली स्टैब्लिश करना चाहिए। केवल गली में कचरा बिखरा होना प्रॉब्लम नहीं है, उससे उभरने वाली जो चीजें हैं, उससे जो बीमारियां फैल रही हैं, जो उससे माहौल फैल रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? एंड यू शुड नॉट टेक ऑन एनी प्रॉब्लम विच इज सो सरप्राइजिंग कि सडनली आए आपने और आपने देख लिया कि अरे यार यहां तो कचरा फैला हुआ है। तो एक तो सैनिटेशन ड्राइव हो सकता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, why can't it be a creating a park? जो एक जमीन का टुकड़ा था, देखिए अभी क्या हो रहा है, आप लोग जो स्कूल से लोग आए वो भी पैराशूट से उतर के आए, जो फौजी था वो भी पैराशूट से उतर के आया। मैं अगर अपने आप को रिलेट करता हूं इस व्यक्ति से, तो ये मैं हूं, मैं यहीं पर हूं, यहीं का बाशिंदा हूं, और मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जो मेरी कॉलोनी में जो मेरे बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए कोई वॉक के लिए कोई ट्रैक नहीं है, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। एंड देन आई आइडेंटिफाइड देयर इज ए ह्यूज लैंड जो कि अनऑक्यूपाइड पड़ा है, और वहां पर लोगों ने बेसिकली उसको डंप यार्ड बना दिया, कचरा डालते रहते हैं वहां पर। एंड देयर आई रियलाइज्ड कि दिस इज द लैंड विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पज। हाउएवर वी क्रिएट ए क्लीनिनेस ड्राइव, एक सैनिटेशन ड्राइव करते हैं हम लोग वहां पर। उसके लिए कई सारी चीजें होंगी, हमें म्युनिसिपैलिटी को लूप में लेना होगा, हमें जगह जगह डस्टबिन्स लगवाने होंगे, हमें पूरे लोगों को इकट्ठा करना होगा, और हमें इस जगह को साफ करके एक ब्यूटीफुल प्लेस बनाना होगा, जिससे कि जो पूरी कॉलोनी है उसके, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग लोग हैं, दे विल लिव ए हेल्दी लाइफ। दो फायदे होंगे, एक तो वो हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, वहां चलने फिरने की जगह होगी, बैठने की जगह होगी, पार्क होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। सो इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी, वेरी सिंपल पिक्चर। नन ऑफ यू इज रॉन्ग, ईच वन ऑफ यू इज करेक्ट, राइट? लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को ऐसे मत करो कि मैं आया तो मुझे पता चला अचानक क्या हो रहा है, राइट? बी द पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन। हमेशा ध्यान रखो, हमने क्या बोला है? हमने आप लोगों को यह बोला है कि कोई भी जो स्टोरी होती है वो 3 फ्रेम में होती है। फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2 बड़ा बना रहा हूं, और फ्रेम नंबर 3। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये यहां पर है, यहां से आप यहां आते हैं और यहां से आप यहां जाते हैं, ये आपका एस्टैब्लिशमेंट होता है। आप स्टोरी को यहां पर एस्टैब्लिश करते हैं और यहां पर आप कंक्लूड करते हैं, यहां पर कुछ रिजल्ट निकलता है। और जरूरी नहीं कि हर रिजल्ट के अंदर इनाम मिले, सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी अपने आप में सबसे बड़ा इनाम है। तो जो कई सारे बच्चे जो हर चीज स्टोरी को इनाम और रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन से एंड करते हैं, वहां पर एक नेगेटिव ट्रेट निकल के आ जाता है कि यार ये व्यक्ति जो है वो केवल और केवल इनाम और इस चीजों के पीछे ही काम करता है। So the person who has seen and identified the problem has shown absolute leadership in identifying the situation. उसमें इनिशिएटिव भी है कि उसने इनिशिएटिव लिया, लोगों को इकट्ठा किया। सो आप लोगों ने स्टोरी अच्छी लिखी है, ठीक है, इसको सही लय देना बहुत आवश्यक है। और जो पहली स्टोरी थी चाइल्ड लेबर वाली, आई थिंक दिस कैन बी, दैट इज ऑल्सो राइट प्लॉट। सैनिटेशन से अलग है, अच्छा प्लॉट है। मैं कतई नहीं कहूंगा कि वो प्लॉट खराब है, बहुत अच्छा प्लॉट है, पर उसका ट्रीटमेंट खराब है। क्यों ना मैं इसको एक ऐसा व्यक्ति बनाता हूं जो कि पड़ोस में एक फैक्ट्री चलती है, वो रोज सुबह शाम देखता है कि वहां पर बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे बहुत कमजोर हैं, उसको कंसर्न होती है कि ये हो क्या रहा है। एंड देन ही वेंट एंड अप्रोच द ओनर एंड ही ऑल्सो अप्रोच द पुलिस, ही ऑल्सो अप्रोच वन एनजीओ जो कि काम करती है बच्चों के रिहैबिलिटेशन में। तो वहां पर वो जो बच्चे थे, जो चाइल्ड लेबर था, उसको वो रोकथाम के लिए काम करता है। दैट्स अ गुड स्टोरी। लेकिन बाप फैक्ट्री चला रहा है, बेटा अचानक आया, 16 साल तक वो आया ही नहीं कभी। वो ऐसा नहीं होता ना भाई, बच्चा 16 साल का है, वो सब जानता है, पिताजी को पुलिस की धमकी दे रहा है,
तो वो तो बहुत दिनों से देख रहा होगा. So the plot is very good, I must say. The treatment has to be much better, right? Now let's move on to the second story. मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई का कैडेट्स ब्लॉक. यहाँ पर आगे तो आप भी इस कैडेट की तरह, इस जनरल कैडेट की तरह जुड़िए आप मेरे साथ. यहाँ पर आकर रगड़ा खाइए और ट्रेनिंग लीजिए. हर नौजवान का सपना होता है कि वो यहाँ पर आए, रहे और ट्रेनिंग ले. परमेश्वरन ड्रिल स्क्वायर से जब हम बाहर निकलते हैं अंतिम लेकर, तब हम एक कमीशन ऑफिसर बनते हैं. When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. This is the spirit of armed forces. And if you want to join the armed forces, मैं कैप्टन अतुल आपको तैयारी कराऊंगा एनडी और सीडीएस की, so that आप इंडिया की प्रेस्टिजियस एकेडमीज के अंदर आकर ट्रेंड हो और बने इस देश की सेना का हिस्सा. उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी. Now this is a story, very hazy picture. राइट, वन ऑफ माई फेवरेट. कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इसमें ट्रेन दिख रही होती है दूर से बस एक. सो लेट मी रीड आउट द स्टोरी. रामू, 25-year-old track maintainer working in Indian Railways. He is living in a small village in Uttarakhand. He was posted in Shimla railway stations in 1996. He had given a track around 4 to 5 kilometers to check the bolts and the gaps between the track. Every day he ran before a train was coming and checked the bolts and gaps. He was very hardworking and dedicated to his duty every time, any season, any condition. Very nice out of box story. He was not given any excuse in his duty. On 15th October 1999 in the afternoon, a train has came at the station and holds for 20 minutes. In this time period, Ramu had to go and check the track for the train. Ramu went to check the track. He saw that 2 kilometers from the railway station, the bolts were missing between the two tracks. There was a gap between them. He immediately come back to the railway station and informed the loco pilot of the train that he told the train for next 15 minutes. He hold the train for next 15 minutes. Ramu went with a team of railway mechanics and repaired the track. Then he called to the loco pilot that now train could go and that track is safe. Okay, fine. We will talk about this story. Let me read one more story. At a railway station, an army man whose name is Captain Raj Shekhar, he lives in Delhi in a small family. Raj was coming to his home in holiday, but in this pandemic situation, most of the people are need to help, and he took a call from his unit, and he had informed to come fast to his unit and go some areas and help people to arrive in hospitals. Suddenly he packed his luggage, go to railway station, waiting for a train to move to his unit. Okay, fine. Okay, one more story I can read. Abhinav is a young dynamic boy. He lives in a village of Jodhpur in Rajasthan. He always fascinated by the thought of joining armed forces and leading an adventurous life. When he was in last year of UG degree, he qualified for CDS exam and he called for the SSB interview. In the picture I see that there is a standing. ये सब picture में क्या see कर रहे हो वो नहीं बताना है. But where is the story? Jaising, where is the story? There is no story, right? Okay. So here there are two good stories. One is a gangman. The person who looks after the track is known as gangman in the Indian Railways, right? और gangman की responsibility होती है
कि वो ट्रैक को देखभाल करे, तो एक अच्छी ट्रेन है। यहां पर रिलेट क्या किया, यहां पर रिलेट किया एक व्यक्ति, एक स्टोरी में, कि ये ट्रेन दिख रही है हमको और ये एक बंदा दिख रहा है, इसने एक गैंगमैन के रूप में इसको रिलेट कर दिया। दैट्स अ नाइस थिंग, दैट्स अ वेरी गुड स्टोरी, वेरी आउट ऑफ बॉक्स स्टोरी, दैट शोज दैट हाउ द डेडिकेशन इज देयर इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट? दैट्स अ नाइस स्टोरी। सो स्टोरी को ट्रीट करते हैं, स्टोरी को समझते हैं। और नम्रता की जो स्टोरी थी उसमें यह था कि एक आर्मी का बंदा है जो कि छुट्टी आया हुआ है और उसको यूनिट से उसको कॉल आता है और वो निकल जाता है, राइट? या whosoever in class 10th, if you can understand what I am talking, you are preparing yourself, number one. Number two, be a honest person. Be an honest person. You have to be an absolute honest person. Then only you can crack the SSB, right? आप चालाकी से, चटकी से SSB नहीं कर सकते। So यहां पर देखिए, this person, okay, he has now there is a train in the picture, तो there has to be a motive कि वो व्यक्ति जो है वो ट्रेन में क्यों चल रहा है, एक मोटिव है। अब एक तो मोटिव हो गया, दो चीजें होती हैं, एक तो इस व्यक्ति के ट्रेन में जाने का मोटिव क्या हो सकता है, वो मेरा प्लॉट हो सकता है, लेकिन बहुत एक स्मार्ट प्लॉट बना दिया गैंगमैन का, तो ट्रैक की मेंटेनेंस, तो यहां पर इसने व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दे दी वो ट्रैक को दे दी, ट्रैक से इस व्यक्ति को रिलेट कर दिया और उसने इसको गैंगमैन का एक पोर्टफोलियो देके, लेकिन वहां ट्रीटमेंट में मेरे को थोड़ा सा इशू है, मेरे को थोड़ा सा ट्रीटमेंट में इशू है। Yeah, all stories I can't take because tomorrow there will be 200 students who will be, so I will select certain story to read out, right? और बट मैं जो स्टोरीज आपको पूरी स्टोरी समझने की कोशिश कर रहा हूं, यदि आपकी स्टोरी वैसे रिलेट होती है वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश यहां कर रहा हूं। तो या तो एक व्यक्ति का, इस व्यक्ति का मोटिव हो सकता है कि वो क्यों ट्रेन पकड़ रहा है, तो मोटिव प्लॉट बन सकता है और उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और यह एक बहुत खूबसूरत प्लॉट बना दिया गैंगमैन का, राइट? तो ये भी बेहतर है नाउ। बट उसमें जो स्टोरी में मैं जो बात कर रहा था कि ट्रीटमेंट, ट्रेन, रवि जो है वो एक गैंगमैन है, रेलवे में शिमला के स्टेशन के पास 1996 से वहां पर एम्प्लॉयड है और वो अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी करता है। वो रोज ट्रेन से पहले ट्रैक को, जो 5 किलोमीटर का दायरा उसको दिया गया है, उसको चेक करता है और वो इंश्योर करता है पैसेंजर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो यहां पर रेलवे ट्रैक की जो ये बोल्ट वाली कहानी है, जो उसमें बड़ा एजेंडा निकल के आता है, वो आता है, जो बिगर एजेंडा निकल के आता है वो आता है सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स। तो यहां पर प्लॉट ये बनता है, मेंटेनेंस प्लॉट नहीं बनता है, मेंटेनेंस इज नॉट अ प्लॉट। जो गैंगमैन की पूरी कहानी ली है वहां पर प्लॉट ये बनता है, सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स, कि कैसे एक व्यक्ति की डेडिकेशन ने, उसकी ऑनेस्टी ने, उसको ट्रीट करो। है रमेश एक गैंगमैन है जो कि रेलवे में शिमला पे है, मौसम खराब है, सर्दी का दिन है, बर्फ गिर रही है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को पूरी करता है, राइट? एक टूरिस्ट से भरी हुई ट्रेन जो कि शिमला स्टेशन पे खड़ी और आगे की तरफ जाने वाली है, उससे पहले जब वो ट्रैक को चेक करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि वहां पर जो फिश प्लेट है उसके नट बोल्ट निकले हुए हैं, और अगर ऐसी स्थिति में ट्रेन उससे क्रॉस हो जाएगी तो वो डिरेल हो जाएगी और कई सारे पैसेंजर्स की जान खतरे में पड़ जाएगी। वो तुरंत दौड़ता हुआ वापस स्टेशन पहुंचता है, लाल झंडी दिखाता हुआ। गैंगमैन के पास वो सारी चीजें होती हैं, बल्कि उसके पास मेंटेन करने के लिए भी चीजें होती हैं। वो अपने पूरे पीछे झोले में हथौड़ा वथौड़ा लिए हुए चलता हुआ रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो इंश्योर करता है कि वो ट्रैक उस ट्रेन के रवाना होने से पहले ठीक हो जाए और उसके इस काम से कई 100 पैसेंजर्स की जान जो है वो बच जाती है। तो दैट्स द प्लॉट, मेंटेनेंस इज नॉट द प्लॉट। तो तुम्हारी स्टोरी अच्छी थी,
लेकिन उसमें जो प्लॉट था वो तुम्हारा सेफ्टी ऑफ पैसेंजर होना चाहिए था, दैट हाउ अ पर्सन हैज एंश्योर्ड द सेफ्टी। तो यहां पर तुम्हारा जज्बा निकल के आता है कि कैसे तुम इनिशिएटिव लेते हो, कैसे तुम डेडिकेटेड हो अपनी ड्यूटीज के प्रति, तुम परवाह नहीं करते हो कि मौसम मतलब जो सिचुएशन है वो एडवर्स है या फेवरेबल है। एडवर्स सिचुएशन के अंदर भी आप अपना काम करते हैं। एंड सिमिलरली नम्रता की जो स्टोरी थी, अगेन देयर हैज टू बी ए कॉज। पेंडेमिक को अगर आपने जो प्लॉट लिया है, अगेन वहां पर बंदे का वापस जाना प्लॉट नहीं है, जो कॉज है, मोटिव है, किस लिए वो गया वो अपनी। और उसमें भी मैं छुट्टी आया, मैं चला गया, मुझे बुला लिया, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी पे आया हूं, मेरी इकलौती बहन है, मैं उसकी शादी पे आया हूं और मैं इकलौता भाई हूं, बड़ा भाई हूं, सारी जिम्मेवारियां मेरे पे हैं। लेकिन बट मुझे कॉल आती है यूनिट से कि आई हैव टू रिपोर्ट बैक टू द यूनिट इमीडिएटली बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। तो यहां ड्रामा आना पड़ेगा। मैं आया हूं, मैं अकेला हूं, बैठा हूं, नॉर्मली फोन आ गया, चल दो भैया, चल दिया। लेकिन मेरा यहां हुक क्या है, एंकर क्या है? मेरा एंकर है मेरे इमोशंस। कैसे वो बहन की शादी को छोड़ के जाना एक टफ होता है, वो इमोशंस, वो एंकर डालना होगा। तो आप बिना एंकर के किसी को चाहे यहां बिठा दो चाहे वहां बिठा दो, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जैसे ही आपने एक इमोशनल एंकर डाल दिया, तब वहां पर एक सेक्रीफाइस, उसका डिवोशन, यहां पर भी वो मैनेज करेगा, मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। ये नहीं कि शादी, बहन की शादी है, बोल दिया चल दो, चल दिया। भैया यहां पर भी आपको मैनेज करना होगा। आप कैसे मैनेज करोगे ये सारी चीजें? तो दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड, राइट? सो कीप राइटिंग द गुड स्टोरीज, कीप ट्राइंग, एंड समझो प्लॉट क्या है, समझो कि कैसे इस स्टोरी को ड्रामेटाइज भी किया जाए। थोड़ा सा एजेंडा होना चाहिए उसके अंदर, मोटिव होना चाहिए उसके अंदर हुक होना चाहिए। आप जब मेरी इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, बार बार देखेंगे, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैं कल के लिए आपको एक पिक्चर और देता हूं जिसको हम डिस्कस करेंगे कल। आपके सामने एक पिक्चर है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओनली वन पिक्चर फॉर टुमारो, बिकॉज दो पिक्चर में डिस्कशन थोड़ा सा पूरा नहीं हो पाता है, बिकॉज आई जस्ट हैव हाफ एन आवर फॉर यू पीपल एंड 11:30 to 33 आई विल स्टार्ट द क्लास। मैं किसी की गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का वेट नहीं करूंगा। आई विल स्टार्ट माई नैरेटिव। जो भी मेरा नैरेटिव है मैं वो शुरू कर दूंगा। नाउ दिस इज ए पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, राइट ए स्टोरी एंड सेंड इट टू मी। Whosoever is new in this class, please subscribe this channel, because this class, this platform, शौर्य भारत डिफेंस योद्धा, you will get the best and you will get the relevant। जो चीज आपके काम की है वो मिलेगी, फालतू की कहानियां नहीं मिलेंगी। I wish you all the best. See you tomorrow at 11:30. Thank you so much. जय हिंद।